السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنی بھابھی سے شدید نفرت تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور بچے کی پیدائش کے وقت میں نے بھابھی کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ بھائی ملک سے باہر رہتے تھے۔ درد کی وجہ سے آدھی رات کو پورے گھر میں اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ صبح ہوئی، میں نے سوچا بھابھی اور بچے مر گئے ہوں گے، لیکن صبح جب دروازہ کھولا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام کرن ہے۔ آج کئی ماہ بعد بھابھی کا قصہ تمام ہونے والا تھا۔ مجھے بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب بھابھی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میں اور میری ماں لالچی مزاج کی تھی۔ بھائی کی تنخواہ کچھ خاص نہیں تھی، بس اتنا کہ گزر بسر اچھے سے ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے سوچ رکھا تھا کہ امیر گھر کی بھابھی لائیں گے اور ٹرک بھر کے جہیز وصول کریں گے، مگر بھائی نے تو ہمارے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی کو یتیم خانے سے بیوی بنا کر لے آئے تھے۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے سر جھکا کر میرے بھائی کے کمرے میں عروسی لباس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر اس کے پورے وجود پر ڈالی اور پھر چلتے چلتے ہاتھ میں رسم کی انگوٹھی لیے اس کے قریب پہنچی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ کر گھر سے باہر نکال دوں، مگر چونکہ وہ میرے بھائی کی محبت تھی اس لیے کوئی بھی قدم میرے بھائی کو میرے خلاف کر سکتا تھا۔ میرا بھائی ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے تاثرات ایک حد تک نارمل رکھتے ہوئے جھٹکے سے بھابھی کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ تو مجھ سے نرمی کی توقع کر رہی تھی، اس سختی پر ہڑبڑا کر میری جانب دیکھنے لگیں۔ 19-20 سال کی درمیانی عمر کی لڑکی، جس کا رنگ سفید تو نہیں مگر ہلکا گندمی رنگ اور پرکشش نقوش کی حامل لڑکی تھی۔ ایک پل تو میں نے اس کی جانب دیکھا تو اپنے بھائی کی پسند پر رشک آیا تھا۔ اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائی اور ماریا بھابھی کی تھوڑی اپنے ہاتھ میں تھامے۔ میں جانتی تھی میری گرفت سخت ہے، اتنی سخت تھی اس کی تھوڑی پر نشان بن چکے تھے۔ وہ سہمی ہوئی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ سو ماریا بھابھی جی، یہ رہا میرا یعنی آپ کی اکلوتی بڑی نند کی جانب سے چھوٹا سا تحفہ، امید ہے آپ کو پسند ضرور آئے گا۔ خالص سونے کا ہے، میں جتاتے ہوئے بھابھی کے چہرے کو ہلکا سا جھٹک کر بولی تھی۔ وہ نئی نویلی دلہن اس پل حیران ضرور تھی، میرا انداز ہی اس کے ساتھ ایسا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے مخملی ڈبیا سے انگوٹھی نکالی اور بھابھی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ زیورات سے خالی تھے سوائے ایک سونے کی گنٹھی کے جو میرے ہی بھائی نے اسے ہی دی تھی، اور کوئی زیور اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی لائی سادہ سی انگوٹھی کو بھابھی کی انگلی میں پہنانا شروع کیا، مگر یہ کیا، انگوٹھی آدھی انگلی میں جا کر ہی پھنس چکی تھی۔ میں نے دباؤ بڑھا کر آگے کرنا چاہی تو بھابھی نے سسک کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پھر اپنی نرم سی آواز میں بولی، آپی یہ انگوٹھی تو مجھے تنگ ہے۔ وہ تو رونے کو تھی۔ میں فوراً حیران ہو کے صدمے سے بولی، کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بھائی نے مجھے خاص تمہارے خاطر بنوائی ہے، اب اگر تمہیں یہی نہیں آئے گی تو بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، نہیں آپ مجھے یہ انگوٹھی پہنا دیں۔ کوئی بات نہیں، میں تو انتظار ہی اس پل کا کر رہی تھی۔ میں نے طنزیہ کہکہ لگایا اور اس تنگ انگوٹھی کو زبردستی بھابھی کی انگلی میں پہناتی چلی گئی۔ بھابھی درد سے بلبلا اٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے مگر مجھے دیکھ کر فوراً مسکرا گئی۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ میں فوراً بھابھی کو یوں ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں گئی تو امی یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا تو شروع سے ہی یہی خیال تھا کہ امیر گھرانے کی بہو بیاہ کر لائیں گے تاکہ گھر میں جہیز تو آئے گا، مگر میرے بھائی یاسر نے تو یتیم خانے کی لڑکی سے محبت کر لی تھی اور آج اسی کے ساتھ سادگی سے نکاح کر کے گھر لے آیا تھا۔ چند دن یوں ہی گزرے اور آہستہ آہستہ بھائی بھی اپنی نوکری میں مصروف ہو گیا۔ وہ صبح 9 بجے گھر سے جاتا اور رات کے گھر تک واپس آتا تھا۔ میری تو عادت سی بن چکی تھی بات پر بھابھی کو ٹوکنا اور اسے نیچے دکھانا، مگر وہ بیچاری میرے سامنے کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ میں اکثر بھابھی کی دیوتی رگ پر ہی حملہ وار ہوتی تھی۔ آج بھی میں نے کچھ ایسا ہی کیا۔ میری چند سہیلیاں گھر آئیں تو میں نے اپنی نئی نویلی بھابھی سے نوکرانیوں کی طرح کام کروایا۔ اپنی سہیلیوں کے سامنے بھابھی کو سناتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی تو بڑا ہی خدا ترس انسان ہے، اس نے تو اس یتیم اور لاوارث لڑکی کو سہارا دینے کی خاطر نکاح کیا، ورنہ کہاں میرا بھائی اور کہاں یہ لڑکی جس کے تو نہ خاندان کی کوئی خبر ہے۔ بھابھی ساری باتیں خاموشی سے سنتی رہی اور جب بھائی گھر آیا تو اسے رو رو کر سب کچھ بتانے لگی، مگر چونکہ میں بھائی سے بڑی تھی اس لیے بھائی نے اسے ہی خاموش رہنے کی تلقین
तलकीन की। मेरे अम्मी को भी भाभी के खिलाफ अच्छा खासा भड़का दिया था। जैसे भाई मारिया के पीछे घूमता रहता है, कहीं एक रोज इसके कहने में आकर वो हम दोनों माँ बेटी को ही घर से ना निकाल दे। अम्मी के दिल में यही वहम बिठाना था और बस फिर अम्मी का रवैया भी भाभी से पूरी तरह बदल कर रह गया था। हम सारा दिन भाभी से घर का काम करवाते रहते और वो बेचारी बगैर कुछ बोले खामोशी से वो काम करती। इसका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं था। वो फरियाद करती भी तो किससे? मेरे भाई से, जो अपनी माँ और बहन के सामने ऊंची आवाज में आज तक बोला भी नहीं था। दिन ब दिन हमारा रवैया भाभी के साथ बदलता चला गया। अब तो अम्मी भाभी पर हाथ भी उठाने लगी थी। वो जब भी कुछ काम करती मैं जिद में आकर उसे बिगाड़ देती और फिर अम्मी भाभी का वो हश्र करती कि देखने के लायक होता था। एक रोज हमें ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। भाभी की तबीयत खराब हुई तो भाई उसे डॉक्टर के पास ले गया। वापसी पर मिठाई खिलाते हुए इसने ये खबर सुनाई कि मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। इस 2 टके की लड़की का वजूद मुझे अपने घर में नाकाबिले बर्दाश्त था। भला इसके बदन से पैदा हुआ बच्चा मुझे कैसे अजीज हो सकता है। मैंने माँ के दिल में भी भाभी के खिलाफ मजीद नफरत भर दी और फिर एक मंसूबे के तहत एक रोज भाई से कहा कि वो दूसरे मुल्क चला जाए। इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, वहाँ जाकर कमाए ताकि इसके बच्चे का मुस्तकबिल भी संवर सके। भाई को ये मशवरा भला लगा। इसने चंद दिन हाथ पाँव मारे और फिर एक नौकरी के सिलसिले में 2 माह के अंदर ही अंदर दूसरे मुल्क चला गया। इस वक्त भाभी का 3रा माह चल रहा था। जब भाई गया तो भाभी बहुत रोती रही। आज सुबह मारिया की तबीयत बहुत खराब थी। इसका वजूद दर्द से चूर था, मगर इसके बावजूद मैंने इससे कहा कि आज पूरा घर वो रगड़ रगड़ के धोएगी। इसने अपनी हालत को मद्देनजर रखते हुए जब मना करना चाहा तो अम्मी फौरन जितना काम करोगी उतना ही बच्चा सेहतमंद होगा, तभी तुम्हें यूं काम लगाते हैं। अब जाओ और जो किरण कह रही है वो करो। वो भोली भाली यतीम खाने की 4 दीवारी तक महदूद लड़की हमारी हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा करती। सारा फर्श धोने लगी। कुछ देर बाद मुझे भाभी की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो फर्श से फिसल के मुंह के बल गिर चुकी थी। मेरी पत्थर दिली का यह आलिम था कि मैं हंस पड़ी। आखिर इस बच्चे से तो जान छूटी, मगर न जाने कैसी सख्त जान थी। मोजजाती तौर पर बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैंने मारिया के सारे नए कपड़े लेकर अपने पुराने और फटे कपड़े पहनने को दिए थे। भाई की कॉल आती तो बामुश्किल 2 मिनट ही पास खड़े रहकर भाई से बात करने देती। मेरी कड़ी नजर को देखकर इसमें हिम्मत ही ना होती कि भाई को शिकायत लगा सके। इस दिन मैं खामोशी से बैठी सामने चलता तमाशा देख रही थी। चेहरे से तो संजीदा थी, मगर अंदर ही अंदर मेरे दिल में सुकून सा उतर रहा था। जब माँ ने अपनी जली हुई कमीज देखी और फिर भाभी को गुस्से से आवाज देने लगी। यह अम्मी का नया सूट था जो वो आज ही पहनकर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने वाली थी। भाभी घबराते हुए कमरे में दाखिल हुई। इस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि इसके जाने के बाद मैंने क्या कारनामा किया था। अम्मी ने अपनी कमीज को वही पर फर्श पर पटका और भाभी को गुस्से से बालों से दबोच कर अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। दर्द के मारे भाभी सिसकी तो पड़ी थी। अम्मी कहने लगी कि आंधी है तू, अब तेरा बाप मुझे नया सूट ला कर देगा। एक तो खुद खाली हाथ बस शक्ल लेकर मेरे बेटे की जिंदगी अंधेरे कर दी, ऊपर से अब काम भी तो ऐसे करेगी। भाभी का चेहरा इस पर जर्द पड़ा था। तभी मैं तंजिया लहजे में अम्मी से बोली, ये छोड़े अम्मा, इसका बाप कौन है, कहाँ है भी या नहीं, कौन जाने। ये तो हमारा एहसान है जो इस जैसी नाजायज औलाद को अपने घर की इज्जत बना कर ले आए। ये अल्फाज बोलते वक्त मेरा वजूद एक पल को लरसा था, मगर मैं तो नफरत की आग में झलस रही थी। जो मुंह में आया कह गई। मेरे अल्फाज सुनकर भाभी तड़पी तो उठी थी और रोते हुए बोली कि मैंने ये सूट बिल्कुल ठीक इस्त्री करके रखा था, पता नहीं कैसे जल गया। खुदारा मेरे वजूद को गाली मत दें, इसमें मेरा कोई कसूर, मैंने खुद अपना नसीब नहीं लिखा। हाँ, बदकिस्मत जरूर हूँ। मुझे मेरे सगे वालिदैन ने भी अपनाने से इनकार कर दिया। न जाने कितना दर्द था भाभी के अल्फाज में। वो करब की इंतहा पर थी, मगर मुझ पर तो जैसे भाभी को हर दर्जे तक नीचा दिखाने का जुनून सवार था। भाभी ने पहली बार यूं जबान से कुछ बोला तो अम्मी को आग लग गई। उन्होंने भाभी के मुंह पर यक्के बाद कई थप्पड़ रसीद कर दिया। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई थी हमारे सामने जबान चलाने की। एक तो खाली हाथ हमारे घर में मेरी भाई की दुल्हन बनकर आ गई। मेरी अम्मी माँ का अमीर बहू लाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया था और अब यूं बोलकर वो अम्मी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। भाभी अम्मी से हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी, मगर अम्मी ने अपना वही सोर जमीन से उठाकर भाभी के मुंह में ठोसा और अगले ही पल गर्म इस्त्री उठाकर भाभी के हाथों पर रख दी। भाभी दर्द से तड़पने लगी थी। एक पल को तो मेरे भी रोंगटे खड़े हुए थे। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अम्मी इस हद तक भी जालिम हो सकती हैं। यही सजा है, आइंदा जब
इन हाथों से काम करेगी तो तुझे याद रहेगा, अगर गलत किया तो तुझे क्या सजा मिलेगी। इतना कहकर माँ ने भाभी को कमरे से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। भाभी रोते हुए बस एक ही बात कही जा रही थी कि गलती इसकी गलती नहीं है, इसने कुछ नहीं किया। मगर इसकी बात में यकीन करता भी तो कौन। इसके दोनों हाथ जल चुके थे, वो दर्द और जलन से कांप रही थी, मगर हमारी आंखों पर तो जैसे सफेद पट्टी बन चुकी थी। अब तो भाई का भी डर नहीं था। अब मैंने इसका होलिया यूं नौकरानियों वाला कर दिया था कि बेचारी पहचान में ही नहीं आती थी। दिन ब दिन भाभी कमजोर होती जा रही थी। हम इसे खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी और बचा हुआ सालन होता तो ठीक, वरना प्यास पकड़ा दिया करते थे। बासी खाना और सारा दिन हामिला होने के बावजूद काम करके वो इंतहाई कमजोर हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त आता गया, मैंने और मेरी माँ ने एक मंसूबा तैयार किया। हमारा यही प्लान था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरे अंदर की आग तभी ठंडी हो सकती थी जो मेरे भाई की मोहब्बत और इसका घर तबाह व बर्बाद होता देख सकूं। इसकी वजह से ही मैं आज तक गैर शादीशुदा बैठी थी। 3 साल पहले मेरे लिए रिश्ता आया। वो लोग मुझे ब्याने के साथ साथ अपनी बेटी यासिर को सौंपना चाहते थे, मगर यासिर ने लड़की देखते ही इनकार कर दिया क्योंकि वो इसे पसंद नहीं थी। ऐ निकाह के वक्त मेरा रिश्ता टूटा था और दोबारा किसी ने मुझसे शादी की हामी नहीं भरी, और अब यासिर अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत को पाकर खुश रहना चाहता था। यह मैं कभी होने नहीं दे सकती थी। मुझे इससे बदला लेना था और वो ऐसे ही मुमकिन था। पिछले 3 दिन से भाभी को शदीद तकलीफ थी। वो कई रातों से सो नहीं सकती थी। बार बार अम्मी को बुलाती और कहती कि मेरे बात सो जाएं, मुझे खौफ आता है, मगर अम्मी उसे छिड़क कर वापस भेज देती। मैंने इससे कहा कि कल रोटी खाना छोड़ दो, इस हालत में तुम अब सिर्फ कहवा ही पीना, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। भाभी शदीद तकलीफ से रोती रहती और सारा दिन घास का कहवा बनाकर पीती रहती, जो मैं यूं ही इसे तोड़ कर लेकर दे चुकी थी। आज तो इसकी तबीयत बहुत हद तक खराब थी। मैंने इसका एक सांस में इसका शादी से लेकर अब तक का मंजर सोचा और फिर कुर्सी पर बैठकर भाभी की दर्दनाक चीखें सुनने लगी। वो दरवाजा पीट रही थी और रो रो कर हमें बुला रही थी। दर्द की इंतहा थी और हमारे जुल्म की हद। मेरी माँ उठी और जाके कमरे को बाहर से ताला लगाई और फिर हम दोनों माँ बेटी सुकून से कमरे में सो गई। सुबह तक यकीनन माँ और बच्चे दोनों ही मरी हुई हालत में मिलने वाले थे और भाई को भी यही बताना था कि तुम्हारी बीवी बच्चा जीते हुए दुनिया से रुखसत हो गई और बच्चा भी ना बच सका। भाभी की गिड़गिड़ाती आवाजों ने नींद में खलल तो डाला, मगर कुछ लम्हों बाद जब वो बिल्कुल खामोश हो गई तो मैं भी सुकून से सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में बिल्कुल खामोशी थी। दिल को धड़का सा तो लगा। फौरन अम्मी को जगाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। यकीनन भाभी बच्चे समेत मर चुकी होंगी। यही सोचकर मैं और मेरी अम्मी इस कमरे की जानब बढ़ी, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। कमरे का ताला खुला हुआ था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर हैरत का झटका लगा। तो कमरे में मैं भी मौजूद नहीं थी। आखिर किसने ताला खोला और कहाँ थी भाभी? हम दोनों माँ बेटी के इस मंजर को देखकर पसीने छूट रहे थे। आखिर वो इस हालत में कैसे कहीं जा सकती है? मैं और अम्मी इन्हीं सवालों में गुम थी कि घर का दरवाजा खुला। हम दोनों ने बेसाख्ता इस जानी पलट कर देखा। मेरे पैरों के नीचे से इस पल जमीन निकल गई थी। मैंने कई बार आंखें नीचे करके दोबारा खोले। सामने तो मेरा भाई यासिर खड़ा था, जो संजीदगी से हमें ही देख रहा था। वो कब आया और अगर इसने मारिया का पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे तो हाथ पांव फूलने लगे थे। भाई धीरे धीरे चलता हुआ हमारे करीब आया। जब वो बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ तो इसकी आंखों में मुझे आंसू दिखाई दिए। वो हला गिला करके अम्मी की जानिब देखते हुए बोला, अमानत छोड़ के गया था अपनी कि आपको अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत थी। माँ की को तो अपने पोते पोतियों से बेतहाशा मोहब्बत होती है, वो तो जान मारती हैं। बहू ना भी पसंद हो मगर अपनी बेटी की औलाद की खातिर वो बहू को भी सीने से लगा कर रखती हैं। मगर आप क्या बिगाड़ा था उसने आपका जो उससे इतनी बड़ी सजा दी? अगर आपके साथ भी मेरी दादी ऐसा करती तो आज मैं आपके सामने मौजूद ही ना होता। भाई का लहजा टूटा हुआ था। वो अंदर से बिखर चुका था। वो रो रहा था। अम्मी तो कांप कर इसके लबर पर हाथ रख के दुहाई देने लगी कि मजीद कुछ मत बोलना, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। मगर भाई ने फौरन इनका हाथ झटक दिया। मेरा वजूद इस वक्त पहली बार कांपा था, गोया किसी ने मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। यासिर ने आंसू साफ किए और बोला, आपने जो किया मेरी बीवी और उसके बच्चे के साथ मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। बस इतना कहकर वो कमरे में गया और सारा सामान एक बैग में पैक करने लगा। मैं बुत बनी बस खड़ी ही रह गई। कोई और भाई होता तो न जाने मेरा क्या हशर कर सकता था, मगर इसकी फितरत मुझ जैसी थोड़ी ही थी। अम्मी रोते हुए भाई के आगे हाथ जोड़ रही थी, बार बार मारिया का पूछ रही थी, बच्चे की खैर मांग रही थी। यासिर बगैर जवाब दिए सामान लेकर घर से जा चुका था। पहला दिन फिर महीने और अब साल गुजर
गुजर चुके हैं। यासर ने दोबारा इस घर में कदम नहीं रखा और इस रात यासर पाकिस्तान पहुंचने के बाद हमें कॉल करके खैरियत मालूम कर रहा था। हम तो सो चुके थे मगर इसके पास घर की इजाफी चाबी अभी भी मौजूद थी। वो सरप्राइज देना चाहता था मगर आगे के हालात ने ही हैरान कर दिया। सुनने में आया है कि मारिया और इसका बच्चा खैरियत से हैं। यासीन ने चंद माह बाद ही अपने साथ लेकर इंग्लैंड शिफ्ट हो चुका था। इसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। आज तो उसका बेटा भी 4 साल का हो गया है। कल शाम को ये कागजात मसूल हुए जिनमें सारी जायदाद यासर ने मेरे नाम कर दी थी। वो हर माह पैसे भी भेज रहा था। अपनी हर जिम्मेदारी वो आज भी निभा रहा है मगर बस खुद को हमारी शर्त से दूर कर चुका है। माँ तो रो रो कर पागल हो चुकी है। इसका कहना है कि सब कि मेरा क्या दरा है। सच ही तो कहती हैं, खुदा मुझे ऐसी बहन किसी भाई को नसीब ना करे। अपने हाथों से दुनिया व आखिरत तबाह कर ली। मेरी बस आखिरी ख्वाहिश यही है कि जिंदगी में एक बार मारिया के कदमों में गिरकर माफी मांग सकूं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।